let's talk about regularization now, which is the third method to avoid overfitting. Okay. So the first thing is कि overfitting आमतौर पर क्यों होती है? Most often it is being caused by the use of high degree polynomials, because that gives you जितना ज़्यादा high degree polynomials तरफ जाते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी बाउंड्री विगली होती चली जाती है, उसके ज़्यादा कर्व्स आपकी बाउंड्री की तरफ ज़्यादा आ जाते हैं, so the chances of overfitting increase. Okay, so one way to avoid overfitting, as we said earlier as well, is कि आप उस फीचर को एलिमिनेट कर दें ताकि आपके डेटा के अंदर जो बाउंड्री ड्रॉ हो रही है उसकी जो वेरिएशंस हैं वो थोड़ी कम हो जाए. मिसाल के तौर पे इफ यू सी लाइक दिस एग्जांपल, let me put that. Where have I put the other pointer? This मैं okay, so for example, if you see this, you see you are using like x, you are using x square as well. So x square will increase the variation in the boundary. You are using x cube as well and x4 as well. So आप जितना ज़्यादा पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ाते चले जाएंगे आपकी बाउंड्री की वेरिएंस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उसमें, right? One way is, okay, we say that no, like let's exclude this fourth degree polynomial. If we exclude this fourth degree polynomial, तो जो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, and that's what we want actually, right? But then eliminating the feature has the same thing. यानी जो बात हमने पहले कही थी कि फीचर्स सिलेक्शन अगर आप करें और आप फीचर्स को महदूद कर दें, so maybe this feature is contributing something. It's just that it is over contributing. We don't want कि हम इसकी contribution को सिरे से eliminate कर दें. We want to keep the contribution of this feature, but we want to minimize the effect of this contribution which is causing overfitting. हम चाहते हैं कि हम इस फीचर को रखें क्योंकि हमें ये लगता है कि हमने फीचर अगर इंक्लूड किया तो इससे हमारी लर्निंग इंप्रूव हुई है, बट वी ऑल्सो डोंट वांट टू लाइक हाईजैक दिस फीचर कि लर्निंग को ही हाईजैक करके और अपना मॉडल जो है वो बिल्कुल ओवरफिटिंग की तरफ चला जाए. सो instead of eliminating or eradicating this feature in totality, what we want to do is we somehow want to control the impact of this feature rather than eliminating it altogether, right? So for example, अगर आप यहाँ पे आए वही डेटा हमने फर्स्ट करें इसको थोड़ा रेगुलराइज किया by controlling the impact of features. For example, you see कि जो x था उसका weight 13 है, which is significant. Say in this context, x square का weight आपने काफी कम कर दिया, it is 0.223. So that means you have kept x square. It will cause like variations in the data, but the impact is limited because the weight is also limited, right? And then you have x3 and you have like really limited the contribution of this feature by using like 0.00014 x3, and similarly for this. So what we are trying to suggest is कि आप अगर हाई डिग्री पॉलिनोमियल इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से इस बात का अंदेशा है कि आपका मॉडल ओवरफिट करेगा, तो बजाय इसके कि आप उन फीचर्स को एलिमिनेट कर दें, आप उन फीचर्स को मेंटेन करें. द कंट्रीब्यूशन दैट दोस फीचर्स आर ब्रिंगिंग मे बी इम्पोर्टेंट टू द मॉडल्स एक्यूरेसी, बट लाइक टू अवॉइड ओवरफिटिंग, try to control the impact. And how can you control the impact? You can like make sure that the coefficients of these features do not get big beyond a certain point. आप इनके coefficients को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते क्योंकि इन features की contribution उतनी ही ज़्यादा होगी जितने इनके coefficients बड़े होंगे. तो आप इनके साथ जो weights associated हैं आप उन weights को control करना चाहते हैं, right? That is what we mean by regularization. That do not eliminate the features but control the impact by controlling the weight that they get. So out of these three like things we are like
मूविंग ऑन विद द डिटेल ऑफ रेगुलराइजेशन फर्दर। सो अब अगर हम रेगुलराइजेशन इंक्लूड करते हैं तो रेगुलराइजेशन के अंदर जो हमने कहा कि हम उन फीचर्स के वेट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इस बात को मॉडल के अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। सो इसको मॉडल के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम कॉस्ट फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं। अब बेसिकली आप अपने मॉडल को फाइंडिंग किस बेस पे करते हैं, कॉस्ट फंक्शन की बेस के ऊपर। अगर आपका कॉस्ट फंक्शन बड़ी वैल्यू दे रहा है तो आप कहते हैं नहीं अच्छा मॉडल नहीं है, डब्ल्यूज को और बाकी चीज़ों को एडजस्ट करें ताकि आपका कॉस्ट फंक्शन कम हो। कॉस्ट फंक्शन कम होगा तो हम कहेंगे मॉडल बेहतर हो गया, ठीक है। तो कॉस्ट फंक्शन क्या है कि जी आपकी प्रेडिक्शन में और एक्चुअल लेवल में फर्क कितना है। तो कॉस्ट फंक्शन को कम करने का मतलब यह है कि आपकी प्रेडिक्शंस आपके एक्चुअल लेवल्स के करीब से करीब करें, ठीक है। ये वो चीज़ है, अगर ये जितनी दूर होगी उतना ही कॉस्ट फंक्शन बड़ा होगा। इसके साथ आप क्या करते हैं, आप ये कहते हैं कि जो आपके लाइक हाइट लाइक जो आपके पर्टिकुलर फीचर्स हैं जिनके वेट्स को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप उन वेट्स के कोफिशिएंट्स भी इसके अंदर इस तरीके से ऐड करें, राइट। इसका बुनियादी मतलब क्या है, इसका बुनियादी मतलब ये है कि W मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि W1 W2 आर ऑलराइट, बट लाइक W3 वेयर दी व्हिच इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 3 जो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट है, और इसी तरीके से x4 जो कि फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट है, ठीक है। आप इनको रखना चाहते हैं लेकिन आप इनकी वैल्यू को बहुत कम करना चाहते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि आप इनकी वैल्यूज को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके इनके फॉर एग्जांपल स्क्वायर्स को कॉस्ट फंक्शन में ऐड करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आप ये कह रहे हैं कि जितना W3 और W4 की वैल्यू बड़ी होगी उतना ही कॉस्ट फंक्शन भी बढ़ जाएगा, और चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो जहां कॉस्ट फंक्शन में आप ये फैक्टर कंसीडर कर रहे थे कि आपकी प्रेडिक्शंस और एक्चुअल लेवल्स का फर्क कम से कम हो जाए ताकि आपका लॉस फंक्शन मिनिमाइज हो जाए, इसके साथ एक और चीज भी अब आपको कैटर करनी है कि W3 और W4 की वैल्यू कम से कम रहे, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी होगी तो भी कॉस्ट फंक्शन ज्यादा होगा। तो कॉस्ट फंक्शन में अब आपने कहने के दो टर्म्स इंक्लूड कर दी। पहले तो आप सिर्फ प्रेडिक्शंस और एक्चुअल लेवल्स का फर्क कम करने के बारे में सोच रहे थे, अब आप उसके साथ साथ ये भी सोच रहे हैं कि जो हाई डिग्री पॉलिनोमियल्स हैं, जो फीचर्स हाई डिग्री पॉलिनोमियल्स के तौर पे आ रहे हैं, उनके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को भी आप एक सर्टेन अमाउंट से बढ़ा नहीं होना है। अब ये मिसाल के तौर पे अगर W3 की वैल्यू 001 है तो इसके स्क्वायर की वैल्यू 0.00001 हो जाएगी फॉर एग्जांपल, ठीक है। और आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.001 समथिंग लाइक दैट इस तरह से, ठीक है। सो बेसिकली W3 की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना ही ये इस कॉस्ट के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज, अगली चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप इसके साथ एक कोफिशिएंट भी एसोसिएट करते हैं। आप कोफिशिएंट की वैल्यू यानी आप कोफिशिएंट से आप क्या कर सकते हैं, इस कोफिशिएंट की मदद से आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने W3 को या W4 को कितना ज्यादा पिनलाइज करना। अगर आप बड़ा कोफिशिएंट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इसको 1000 टाइम्स पिनलाइज करना। अगर आप फॉर एग्जांपल W4 को और ज्यादा पिनलाइज करना चाहते हैं तो आप इसके लिए और बड़ा कोफिशिएंट ले सकते हैं। अगर आप इसको चाहते हैं कि कम पिनलाइज किया जाए तो आप इसके लिए 100 को या 10 को भी सो बेसिकली ये कोफिशिएंट और W's की वैल्यूज डिटरमिन करेंगी कि कितना ज़्यादा आपने W's को कंट्रोल करना है, और जितना ज़्यादा आप W's को कंट्रोल कर पाएंगे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आप ये कह रहे हैं कि x रेज़ टू पावर 3 और x रेज़ टू पावर 4 को एलिमिनेट ना करें, लेकिन उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को एज लिमिटेड एज पॉसिबल कर दें ताकि वो मॉडल को ओवरफिटिंग की तरफ ना लेके जाएं, लेकिन जो नेसेसरी कंट्रीब्यूशन है उनकी वो भी किसी हद तक मॉडल में मौजूद रहे। गॉट दिस पॉइंट? सो इट्स लाइक कि आपका जो मॉडल है लाइक जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन दो के साथ इस तरह से फिट हो रहा था और यहाँ पे इनके रेगुलराइजेशन के बगैर जो था वो काफ़ी बिगली था, इट बिकम्स मोर काइंड ऑफ राइट, इट स्टिल हैज लर्नड गुड थिंग्स, right, maintaining all the features, but it has also avoided overfitting because the contribution of those features is limited. Now the value that it is adding is कि हम वो features जो इसकी variations को capture कर रहे हैं उनको सिरे से eliminate नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें रख रहे हैं
लेकिन उनको ओवरफिट भी नहीं करने दे रहे बाय यूजिंग दिस रेगुलराइजेशन कॉन्सेप्ट। ओके, सो फॉर्मली स्पीकिंग हम इसको लाइक यहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू इज, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं तो हमारे पास लॉस फंक्शन तो ये है कि आप प्रेडिक्शन माइनस एक्चुअल लेते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं एंड लाइक सो ऑन सो फोर्थ। और ये आपको पता है कि लाइक जब आप लीनियर रिग्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिस इज सिंपली w डॉट x प्लस b, जबकि अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिस इज w डॉट x प्लस b एंड इट इज पास टू द सिग्मॉइड फंक्शन एज वेल। सो जो आपका जो लॉस फंक्शन है वो मीन स्क्वायर्ड एरर है इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन एंड इट इज लॉजिस्टिक लॉस फंक्शन इन केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, राइट? सो आप क्या करते हैं कि इसके अंदर आप इन टर्म्स को भी ऐड कर देते हैं। आप एक लाइक कोएफिशिएंट या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर लेते हैं लैम्डा, राइट? लैम्डा सेज कि आपने w के लिए w का मल्टीप्लाई कर रखना है, ठीक है? सो लैम्डा ओवर 2m, आप बेसिकली 2m इसलिए रखते हैं कि आप थ्रू आउट 2m को एज लाइक डिनोमिनेटर इस्तेमाल करें तो आप यहाँ भी 2m ही रखते हैं, राइट? और आप क्या कहते हैं कि आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, 2m से डिवाइड कर दें और जितने भी आपके फॉर एग्जांपल WJ फॉर एग्जांपल स्क्वायर्ड फीचर है, जो भी फीचर्स हैं, जिन फीचर्स को आप बेसिकली इसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं रेगुलराइजेशन के अंदर, आप उन सब का सम इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे और वो जो सम आप लेंगे उसको आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। लैम्डा बेसिकली डिफाइन करेगा कि आप उस फीचर को कितना ज़्यादा मिनिमाइज करना चाहते हैं। अगर आप लैम्डा की वैल्यू बहुत बड़ी रखते हैं इसका मतलब है कि आप W को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर रहे हैं, W की वैल्यू उतनी छोटी रखनी पड़ेगी मॉडल में ताकि पेनल्टी कम। और अगर आप लैम्डा की वैल्यू छोटी रख रहे हैं इसका मतलब है कि आप W को उतना ज़्यादा मिनिमाइज नहीं कर रहे हैं, आप बस थोड़ा सा मार्जिन है कि आप W की वैल्यू को बढ़ा भी सकें, ठीक है? सिमिलरली अनदर थिंग इज कि चूंकि आपके मॉडल के जो पैरामीटर्स हैं उसमें W भी शामिल है और B भी शामिल है, तो लाइक आप B को भी रेगुलराइज कर सकते हैं। B चूंकि सिंगल वैल्यू होती है, W तो बहुत सारे होंगे लेकिन B चूंकि सिंगल वैल्यू होती है तो आप लैम्डा ओवर 2b इंटू बी स्क्वायर भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, जो B की इंक्लूजन है दिस इज जनरली रिगार्डेड एज सब्जेक्टिव इंक्लूजन, राइट? सम पीपल इंक्लूड दिस B इन रेगुलराइजेशन एज वेल बट मेनी पीपल डोंट बिकॉज इट इज बिलीव्ड कि B को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने से रेगुलराइजेशन के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि B बुनियादी तौर पे एक काइंड ऑफ कांस्टेंट है, ये किसी भी फीचर का मल्टीप्लायर नहीं होता। यानी W's तो फीचर्स के मल्टीप्लाई है, लाइक W x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फीचर के साथ मल्टीप्लाई होता है, B किसी फीचर का मल्टीप्लाई नहीं होता, राइट? सो लाइक दिस इज यूजुअली एक्सक्लूडेड, राइट? सो दिस इज यूजुअली कंसिडर्ड एज एन इनफ नंबर, राइट? So now you have your loss function like listed like this plus the regularization term added to it, like which is like lambda over 2m sum over all the terms of wj square from 1 to n, ये सारी n terms का जो है वो इसके अंदर आपने इंक्लूड कर दी, ठीक है? अब बेसिकली लाइक अब डिपेंड क्या करता है कि आप जो टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लैम्डा जो है वो क्या रखा है आपने। अगर आप लैम्डा की वैल्यू बहुत बड़ी रखते हैं, फॉर एग्जांपल you choose lambda to be 10 raised to power 10, so that's a very big value for lambda. That means कि आप जितने भी फीचर्स, जितने भी वेट्स फैक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं उनकी वैल्यू बिल्कुल क्लोज टू 0 होगी, क्योंकि आपने मल्टीप्लायर बहुत बड़ा चूज़ किया है। तो आपका चूँकि आप मल्टीप्लायर बड़ा चूज़ कर रहे हैं तो W की वैल्यू जितनी बड़ी रहती है कि आपके लॉस फंक्शन की वैल्यू उतनी बढ़ जाती है और आप अपने लॉस फंक्शन को बढ़ाना नहीं चाहते। इसका मतलब है कि आपकी W's की वैल्यूज उसके मुताबिक बहुत कम हो जाएगी, राइट? सो बेसिकली लैम्डा मैटर्स, या आप लैम्डा की वैल्यू जो रखेंगे। तो यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल आपका जो ओवरफिट मॉडल था, राइट? अगर आप लैम्डा की वैल्यू बहुत बड़ी रखते हैं, राइट? और अगर आप लैम्डा की वैल्यू लाइक 0 रखते हैं, ठीक है? सो अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या है? सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो फॉर एग्जांपल विद समथिंग लाइक दिस, कि आप अगर लैम्डा बहुत बड़ा रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 raised to power 10, ठीक है? तो ये चूँकि W's तकरीबन 0 के बराबर चले जाएंगे, तो ये सारी टर्म्स तकरीबन 0 के बराबर चली जाएंगी और आपका मॉडल तकरीबन B ही रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स बहुत छोटी होते होते तकरीबन एलिमिनेट हो जाएंगी, ठीक है? जब आपका मॉडल सिर्फ B रह जाएगा तो आपका जवाब भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। आपको पता है B मॉडल का इंटरसेप्ट होता है, तो B अगर आपका मॉडल W(x) इसमें से निकालते सिर्फ B रखें तो सिर्फ इंटरसेप्ट बचेगा, so that will be a straight line, that is kind of null. On the contrary, अगर आप अल्फा की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू बहुत छोटी रखते हैं
उसका मतलब क्या होगा कि आप W's को अनकंट्रोल्ड छोड़ रहे हैं, और जब आप W's को अनकंट्रोल्ड छोड़ेंगे तो आपका मॉडल को ओवरफिट करेगा, जैसे एक कर्वी लाइन आपको नजर आ रही है, राइट। एंड इफ यू चूज अ गुड इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ लैम्डा, then you will probably be avoiding both overfitting and underfitting, and you will get the right kind of model which is just right that you want to live in, right? So choosing the value of lambda is an important consideration in this context. So regression के केस में if you remember, तो basically आपका loss function अगर ये है, ठीक है, जिसमें आपने ये regularization term ऐड की है, इसी regularization term में अगर आप इसके डेरिवेटिव में अगर आप इसका डेरिवेटिव भी ऐड करेंगे तो इस टर्म का डेरिवेटिव सिंपली लैम्डा ओवर m wj आएगा, राइट। एंड इन दिस केस सिंस यू आर डूइंग इट फॉर वन पैरामीटर w, तो आप समेशन इसमें ऐड नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि जब आप wj का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 जो है वो निकल के इधर आ जाएगा, और अगर wj रह जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी लैम्डा ओवर m wj, राइट। तो दिस इज द टर्म दैट विल गेट एडेड। बी के केस में चूंकि आप बी को रेगुलराइजेशन में ऐड कर ही नहीं रहे, लिहाजा बी के केस में आपके फंक्शन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, इट विल रिमेन द सेम, बट जस्ट फॉर w you will be adding this term while computing the gradient lambda over m into wj। तो w की जो भी इंस्टेंस आप ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, उसके इस w का वो पर्टिकुलर पैरामीटर उसमें इंक्लूड हो जाएगा, समेशन इंक्लूड नहीं होगी, जैसे कि यहाँ लॉस फंक्शन में इंक्लूड हो रही है। और जब आप ग्रेडियंट डिजाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे, सो लाइक दिस इज व्हाट इट विल बी, wj is equal to wj minus alpha, where what is alpha in this case? Alpha is the learning rate, right? Alpha is the learning rate, and this term is giving you the gradient, the direction, and this is telling you how much you will change the value of w at one time and how much you will change the value of b at one time. And again, like as we said earlier, that these updates will be simultaneous updates. What we mean by simultaneous updates is कि ऐसा नहीं होगा कि आप ये सारी कंप्यूट करके w की वैल्यू को अपडेट कर दें और बाद में यहाँ पर w की अपडेटेड वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हो, बल्कि आप ये इंटरमीडिएट कंप्यूटेशंस कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, उसके बाद w और b की वैल्यू को इकट्ठे अपडेट करेंगे। b की कंप्यूटेशन में आप w की नई वैल्यू इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, सो here we just show for example an example calculation। for example अगर आप यहाँ पे लैम्डा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू को लेते हैं और लर्निंग रेट के साथ इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं, सो यू से अगर आपका लर्निंग रेट फॉर एग्जांपल जो है अल्फा टाइम्स, यानी अगर आप इस टर्म में देखें, सो बेसिकली आप यहाँ से अल्फा टाइम्स लेके इसको इस अल्फा के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट विल डिटरमिन कि आपके अल्फा का इम्पैक्ट इसके अंदर क्या आ जाएगा ओवर द नंबर ऑफ रैंक एग्जांपल्स। सो we will skip over these bit of slides like this, because it just simply tells you how to compute the derivative. Derivative this calculation is like very simple in this case. ये 2 इस साइड पे आ जाएगा, right? और 2 यहाँ पे जब आएगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो this will be simply lambda over m w। That's it. Like we don't really need to go into this detail anymore. Okay. And this is the example for like logistic regression, linear regression के लिए हमने इसे अभी देखा। logistic regression के लिए क्या होगा कि अगर आप for example z calculate कर रहे हैं which is using lots of polynomials and their combinations, for example w1 x1 w2 x2 w3 x1 square x2 w4 x1 square x2 square and w5 x1 square x2 cube plus so on so forth plus b, lots of like polynomials. So and then you pass it through the sigmoid function, the cost function will in this case will like become like आपको पता है कि आपका जो cost function है तो इस केस में log loss function होता है, and you simply add this term here, right? Lambda over 2m. This term is again the same term that we added for linear regression. So हमारा जो linear regression के अंदर जो term हमने ऐड की थी exactly वही term हमने यहाँ पे ऐड की, right? और जब आप इसके ऊपर भी ग्रेडियंट्स कंप्यूट करेंगे तो यू गेट एग्जैक्टली द सेम वैल्यू, राइट? लैम्डा ओवर m wj, right? And again, as we said earlier, that this again looks like the same as for linear regression, but the difference is that this function is not like basically the linear regression. This is basically linear regression passed through sigmoid function.
So that's the difference. Otherwise, everything is the same in logistic regression as in linear regression, right? And we haven't regularized B again here, so like there is no change in the case of B as parameter, right? So that concludes our discussion for regularization, and like we have kind of completed that first course of machine learning specialization, which is basically covering regression and classification, right? So from now on, we will be obviously beginning with the second course, which is like advanced learning algorithms that focus more on neural networks and deep learning. So after obviously vacations, we will be moving on to that. In the meantime, this course is our बहुत सारी labs associated हैं, वो labs मैंने already आपसे share की हुई हैं. Go through those labs because they tell you कि कौन सी चीज़ किस तरीके से की जा रही है, कौन ये loss functions कैसे move कर रहे हैं, regularize